मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ scope of social study. Scope of social study. Scope की चीज होती है? Scope ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤਰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਘੇਰਾ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, 30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 20 ਗੁਣਾ 30। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਨ ਆ ਗਏ, ਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਚੇਅਰਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਈਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਕੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ ਹੋਗੀ, ਚੌੜਾਈ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਦੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੋਗੀ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ। ठीक है, हर एक चीज का की हो गया? अपना अपना दायरा हो गया। उस दायरे दे विच जो कुछ भी होता वो होता स्कोप। ते हर एक चीज का आपको अपना स्कोप है। जिस तरह एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी की है, पुराना सब्जेक्ट है। पुराना सब्जेक्ट की गल करदे असीं कि वैसे चलता जदों तो समाज की होंद शुरू हुई आ, उस टाइम तो जिहड़ा ये विषय ओह चलदा। ठीक है, समाज की उत्पत्ति के नाल ही उत्पत्ति हुई सी। बट अज के टाइम के दायरा कित्थों तक चला गया वो आप अगे खेतर के जिहड़े पॉइंट आ उन्हां दे विच डिस्कस कर। पहली जिहड़ी इहदे विच हैगी आ, ठीक है, खेतर का जिहड़ा हैगा पहला पॉइंट हैगा वो हैगा भी समाज दा अध्ययन। समाज दा अध्ययन, स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाजिक अध्ययन के खेतर दे विच सब तो पहला, ठीक है, समाज का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोसाइटी। एसएसटी का जिहड़ा उद्देश्य है, समाजिक अध्ययन का की उद्देश्य है कि विद्यार्थियों नूं उसदे आले दुआले प्रति, आला दुआला मीन जिहड़ा समाज जिथे वो रह रहा उस प्रति जिहड़ी हैगी मुकम्मल जानकारी है वो मुहैया करवाना है। ठीक है, कि समाज का निर्माण किवें होया। आपां कहने आ कि सब तो पहला मनुख किवें पैदा। आम तौर पर कई इतिहासकार कहते हैं कि बाबे आदम के नाल जिहड़ा हैगा पहला कंसैप्ट जां पहला मनुख का जिहड़ा संकल्प आ वो शुरू होंदा। ठीक है, फिर कहते हैं मनुख जाति का विकास किवें होया।
ठीक है। ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਯੁੱਗ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ठीक है सूरज प्रकाश जीव जंतु पेड़ पौधे हरेक की आपको अपनी भूमिका, मनुख की भूमिका मनुख का की अहम रोल समाज में किवें डिवेलप करता है। ठीक है तो इस तो अलावा साडे इतिहास का साडे रिलीजन का साडे समुदाय का ठीक है की रोल, ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां का संबंध है वो समाज का अध्ययन करना है, वो भी इहदा एक खेत्र का है। दूसरा है मनुख मनुख संबंधां दा अध्ययन, मनुख मनुख संबंधां दा अध्ययन, मनुख मनुख संबंध किहड़े हो गए भी, एक मनुख दे दूसरे मनुखां नाल संबंध, मनुख मनुख संबंधां दा अध्ययन। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੈਨ ਮੈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਣਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਮੈਦਾਨ ਪਠਾਰ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਗਲੋਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ठीक है। दिन रात किवें बनते हैं, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ना कि हुण दिन आ जी हुण रात आ जी, किवें बनते हैं, ठीक है। वो सारे जलवायु किस तरह का, हुण कई देशों के विच ज़्यादा ठंड पैंदी है, किते ज़्यादा गर्मी पैंदी है, किते कई खेत्रां दे विच की मौसम इक्को जिहा रहिंदा, वो किवें हुंदे आ, क्यों हुंदे आ, ये सारे जिहड़े सवाल बनते हैं, ठीक है। खेतीबाड़ी आ मिट्टी के अकॉर्डिंग, पौन पानी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कई खेत्रां दे विच जिहड़ियां हैगियां फसलां, ठीक है, वो किस तरीके नाल उन्हां दी जिहड़ी हैगी आपां कह सकदे हां कि उस जलवायु के अकॉर्डिंग उन्हां दा उत्पादन किस तरह का, ये सारियां चीज़ां दा जिहड़ा हैगा मनुख ते वातावरण ते भौतिक वातावरण नाल संबंधित है, जो कि एक समाजिक अध्ययन के कार्य खेत्र दे विच आउंदे हैं। उस तो बाद मनुख अते संस्थावां दे संबंधां नाल, मनुख अते संस्थावां दे संबंधां नाल। हुण इंसान मनुख आ तां वो कल्ला तां रह नहीं सकदा, बार-बार अपनी ही गल कर रहे हैं, उन्होंने रहने के लिए की आ होर मनुखां दी लोड़ आ, ठीक है। समाज दे विच रहने के लिए होर मनुखां दी जरूरत, तां होर मनुख जिहड़े हैगे आ, ठीक है, वो कई बार आपां किसी चीज़ के नाल जुड़े होंदे हैं, ठीक है। जुड़े भी होंदे आ, मान के चलो एक स्कूल दे विच अध्यापक हुंदे आ, विद्यार्थी हुंदे आ, जां इस तो इलावा होर अपना स्टाफ हुंदा, वो की होगी स्कूल की है किथे संस्था, स्कूल की है संस्था, स्कूल कॉलेज बैंक ये सारियां चीज़ां, ठीक है, ये की है सारियां संस्थावां। हुण मनुखा इन्हूं सारे तरह दी संस्थावां आपां सब तो पहला बच्चा पहला समाज दे विच रह गया, समाज तो बाद वो की आ स्कूल दे विच चला गया, जां बच्चे नूं असीं किते दवाई लैण लई हॉस्पिटल लै गए, वो भी एक संस्था नाल। इस तरह जिहड़ा मनुख दा संबंध आ, ठीक है, तां वो अलग-अलग तरह दीयां संस्थावां नाल। ये किहड़ियां-किहड़ियां संस्थावां हो सकदियां, भी साडा परिवार भी एक संस्था हैगी आ, साडी पंचायत भी एक संस्था हैगी आ, साडा देश आ ये भी एक संस्था के रूप दे विच आ, साडी न्यायपालिका, ठीक है, साडियां नैशनल इंटरनैशनल लैवल ते जिन्नियां यूनियनां बणियां होईयां वो सारियां की एक संस्था, ठीक है। तां WHO या WTO बड़े-बड़े लैवल दे जिहड़ियां संस्थावां, इन्हां सारियां दा काम इक्को ही है, की करना कि समाज के लोगों को किसी ना किसी रूप दे विच किसी भी तरह की जिहड़ी सहूलत मुहैया है। हुण मान के चलो कोई भी संस्था, ठीक है, जिवें स्कूल आ एक ही है एजुकेशन प्रोवाइड करना, हस्पताल की आ यह सेहत सेवाएं प्रोवाइड करना, जिथे कि लोगों के हितों की गल की जाती है जां मनुख के हितों की गल की जाती है, वो सारियां संस्थावां दी अपनी गल आ वो इस दे स्कोप दे विच कर रही है। उस तो बाद जिहड़ी इहदे विच अगली चीज़ है मनुख अते भौतिक वस्तुओं के आपसी संबंधां नाल है। मनुख अते नंबर 5 मनुख अते भौतिक वस्तुओं के संबंधां नाल है। वस्तुओं के संबंधां दा अध्ययन। हाँ जी, इहदे विच की आ गया मनुख अते सॉरी भौतिक वस्तु, ठीक है। इहदे नाल ही मिलदा जुलदा पॉइंट आपां नंबर 3 ते गल कीती सी, मनुख अते भौतिक वातावरण की गल कीती सी, इत्थे भौतिक वस्तुओं की गल है। हाँ जी, स्टडी ऑफ मैन एंड भौतिक वस्तुआं किहड़ियां आम तौर पर जिवें आपां कहंदे आ कि समाज दे विच रहण दे लई सानूं जिंदगी जिउण दे लई बहुत सारियां वस्तुआं दी जरूरत होंदी है। आम तौर पर साडी एक कहावत बनी हुई है कि एक मनुख दीयां जिहड़ियां मुੱਢਲੀਆਂ वस्तुआं वो किहड़ियां, रोटी कपड़ा ते मकान, ठीक है, जिन्हों आपां ठेठ शब्दां दे विच कहंदे आ कुल्ली गुल्ली ते जुल्ली,
ठीक है कि रोटी कपड़ा मकान की आ सानू रहन दे लई जरूरी है। तो फिर जिहड़ा रोटी कपड़ा मकान है सारियां की चीज़ां है, सारियां भौतिक चीज़ां जिहड़ियां साडे समाज दे विच की आ जिहड़ियां बनदियां जां जिन्हां दी रोटी बनाउण दे लई एक किसान कणक पैदा करदा, कणक तो फिर उहदी पिसाई हुंदी है, जदों पीसी जाती है फिर उहदा आटा बनदा, आटा तो बाद रोटी बनदी है, रोटी बनदी है ते मनुख दा पेट भरदा। ठीक है ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कपड़ा ये भी किसान जी फसल पैदा करता। ठीक है वो जड़ा नरमा कपाह वो जड़ा हैगा आप उस तो की साडा कपड़ा तैयार होता। ठीक है मकान मकान भी एक मनुख की उपज है, ये भी एक भौतिक वस्तु है। मकान के किहड़ियां चीज़ां कोई सीमेंट इट्टां बजरी है तो यह दात कुदरत की दी हुई, बट इसमें जिहड़ा हैगा मेनटेन कौन करता एक मनुख करता। इस करके समाजिक अध्ययन के खेत्र के मनुख अते भौतिक वस्तुओं के संबंधां की जिहड़ी आ गल कीती गई। अगे कुदरती विग्यानां अते सूक्ष्म कलावां दा अध्ययन। कुदरती विग्यानां अते सूक्ष्म कलावां दा अध्ययन। हाँ जी एक साइंस हो गया ते एक हो गया साडे आर्ट। इन्हां दा आपस दे विच की आ बड़ा संबंध। ठीक है तां इहदे विच जिहड़ी हैगी आ की गल आउंदी आ कुदरती विग्यान। कुदरती विग्यान की आ यह नैचुरल साइंस की गल की। साइंस ने सानू की दिता? साइंस ने सानू बहुत सारा कुछ दिता। ठीक है साइंस ने सानू जिंदगी दे विच जिहड़ा हैगा जीवन जिउण दे लई बहुत सारा तरह दी सहूलतां दित्तियां। मान के चलो उदाहरण के तौर पे कि एक एटम बम की गल कर। ठीक है एक एटम बम ठीक है यह साइंस की खोज है, बट एक एटम बम के नाल असी समझे कि मनुख के कल्याण लई जां उहदी रक्षा लई जरूरी है, बट बच्चों तुहानूं ये पता कि इसने मनुख द्वारा बनाई वस्तु नहीं मनुख दा वड्डे पद्धर ते कांड। मान के चलो जो भी साडियां वर्ल्ड वार होईयां उहदे विच कई देशों ने एटम बमां दी वरतों। ठीक है जिवें कि आपां जापान के दो शहर हिरोशिमा ते नागासाकी दे विच उस टाइम ते वर्ल्ड वार के दौरान की एटम बमां का प्रयोग किया गया, जिन्हां दे नाल उत्थों दा जिहड़ा हैगा जीवन पद्धर इन्ने बड़े लैवल ते तबाह हो गया। ठीक है वो अज तक भी उत्थे किसी सही रूप दे विच मनुख जां उत्थे जिहड़े हैगे आ पशु पंछी पेड़ पौधों की जिहड़ी उत्पत्ति है वो नहीं हो सकती। ये एक विनाश हो कुदरती ये विज्ञान की गेम सी ते सूक्ष्म कलावां। सूक्ष्म कलावां जिन्हां असीं फाइन आर्ट्स की गल करते हैं। ठीक है इहदे विच कोई पेंटिंग आ गया, संगीत आ गया, नाच आ गया, नाटक आ गया। ठीक है ये भी साडे विरसे का साडी सोसाइटी का की एक पार्ट है। ठीक है इन्हां बारे भी जिहड़ियां सूक्ष्म कलावां ठीक है ये भी साडे समाज दे विचों पैदा हुंदियां आपां देखदे हां। ठीक है अज दे टाइम दे विच इन्हां दी एक खास महत्ता आपां कहने कि आ चीज़ ठीक है आ चित्र इस व्यक्ति द्वारा बनाया। ठीक है आ जिहड़ी है कविता इस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। ठीक है आ नाच आ देश का आपां कहने पंजाब का जिहड़ा हैगा लोक प्रसिद्ध किहड़े लोक नाच है जिवें आपां कहने गिद्धा भंगड़ा ये साडे समाज की तस्वीर नूं पेश करते हैं। उस तो अगली गल है चलंत मामलों का अध्ययन। नंबर 7 की है चलंत मामलों दा। हाँ जी समाजिक अध्ययन के खेत्र विच चलंत मामलों का अध्ययन भी एक कार्य खेत्र नूं दर्शाउंदा है। चलंत मामले किहड़े हुंदे हैं जिह आपां स्टडी ऑफ करंट अफेयर। करंट अफेयर की हुंदे
ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ देश के किसी एक खेतर ठीक है या खेतर तो अलावा ठीक है राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे प्रभावित करते चलंत मामले जो कि समय दे विच प्रेजेंट टाइम दे विच किहड़ियां घटनावां साडे समाज दे विच वापर रहीआं उन्हां नूं असीं करंट अफेयर्स कहंदे हां। करंट अफेयर्स दे विच जिहड़े हैगे आ ਉਹ कोई विधान सभा ਦੇ संसद ਦਾ कोई इजलास ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਲੰਤ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ एकता का विकास इंटरनेशनल ठीक है डेवलपमेंट की गल इंटरनेशनल डेवलपमेंट की गल हो रही है ठीक है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਆ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਨ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਮਾਯੋਜਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। फिर आ गया अंतरराष्ट्रीय सूझ का विकास अंतरराष्ट्रीय सूझ का विकास हुण इत्थे जिहड़ी हैगी आ ओह इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अंतरराष्ट्रीय सोच की साडा देश जिहड़ा हैगा ठीक है ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ उदाहरण के तौर पे 1914 तो 1918 के दौरान पहला विश्व युद्ध ठीक है उस तो बाद दूसरा विश्व युद्ध चलिया 1939 चल वो जेडे विश्व युद्ध ने साडी बहुत तबाही की बेशक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ लोगों ने अपनी पॉलिसियां द्वारा ठीक है संसार को एक दूसरे के नाल लड़ाना चाहते उस दी जिहड़ी तबाही के नतीजे अज असीं
ਭੁਗਤ ਰਹੇ हैं। ठीक है, ਅੱਜ बहुत सारे देशों का आदान प्रदान किया रुकिया हुआ क्यों कर क्योंकि उस टाइम वो एक गुट दे विच जां दो गुटां दे विच की वंडे गए थे। तो अंतरराष्ट्रीय सूझ के अकॉर्डिंग असीं ये सोची कि नहीं, हरेक व्यक्ति नूं जीवन दा अधिकार, संसार के हरेक व्यक्ति नूं उहदियां जिहड़ियां मूलभूत लोड़ां पूरीआं होणीआं चाहीदियां हन। ठीक है, हरेक नूं आपदे खेतर की लोड़ है। इस करके की आ ये जे असीं अपनी सूझ नूं डिवेलप करनी पऊगी, क्योंकि जे असीं डिवेलप करांगे फिर ही असीं जिंदगी दे विच किसी मुकाम ते पहुंच सकांगे। इस करके समाजिक अध्ययन का एक खेतर है कि असीं अपने लोगों के विच असीं मान के चलो कोई टूरनामेंट कराउने आ, कोई सैमीनार कराउने आ, लोगों की सूझ नूं डिवेलप किया जाए, उसका खेतर की वड्डा किया जाए, अंतरराष्ट्रीय जिहड़ी सूझ है वो विकसित की जाए। ये भी इस चीज़ का की सीगा एक पार्ट सीगा। अगला है नागरिकता की सिक्ख्या। नागरिकता की सिक्ख्या नागरिक किस चीज़ में आम तौर पर तो असी जो असी पोलीटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि जिहड़ी है सिविक्स दे विच असी पढ़ते हैं कि जदों कोई भी बच्चा भारत दे विच 18 साल की उम्र जिहड़ी पूरी कर जांदा तां उस नूं बालग मत अधिकार दिता जाता। बालग मत अधिकार के अकॉर्डिंग वो की एक साडा नागरिक बनदा। ठीक है, बट इत्थे जिहड़ी गल कीती गई है, ठीक है, वो एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप की गल कीती कि कला नागरिक बनना नहीं, नागरिक बनने नाल साडीआं जिम्मेवारियां बनदियां। जिम्मेवारियां की बनदियां? ठीक है, तां नागरिकता की सिक्ख्या दे विच किहड़ियां जिम्मेवारियां करनियां। ठीक है, असीं चंगे नागरिक कदों बनदे हां कि नागरिकता दे विच साडा साडी सोचनी, साडी समझनी, साडा व्यवहार, साडियां कदरां कीमतां, ठीक है, जां इस तों इलावा साडा दृष्टिकोण, साडियां आदतां, ये सारियां चीज़ां हुण एक व्यक्ति आ उहदे समाज प्रति किहड़े-किहड़े फर्ज बनदे आ। ठीक है, इन्हां चीज़ां तां ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां कि साडा बोल, साडा रहन दा ढंग, साडा खाण दा ढंग, साडा पीण दा ढंग, कुल मिला के की है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति दे लिए कोई अड़िक्का मुश्किल पेश ना करे, इस चीज़ को आपां कहने नागरिक। ठीक है, तो ये जिहड़े गुण हमदर्दी, प्यार, भाईचारा, ये सारियां चीज़ां ये सारियां नागरिकता नाल संबंधित है, इन्हां दा होना बहुत ज़्यादा जरूरी। इस तो इलावा लास्ट पॉइंट है सभ्याचारिक विकास। सभ्याचारिक सभ्याचार की होगा साडा सभ्याचारिक विरसा, सभ्याचारिक विरसा, कल्चरल हेरिटेज। असीं हरेक व्यक्ति अपने विरसे नूं मान करने, आपां कहने आ कि असीं पंजाबी लोग, साडा कल्चर बहुत वधिया, साडा सभ्याचार बहुत वधिया। सभ्याचार की सभ्याचार विच समाज दे सारे तरह के जिहड़े हैगे पक्ष पेश कीते। सभ्याचार खाण पीण भी एक सभ्याचार हो सकता, पहनना भी सभ्याचार हो सकता कि मन के चलो हुण मैं एक दस्तार पहनी हुई, ठीक है, आपां कहने पंजाबियां दे जिहड़ी हैगी आ साडे 10वें पातशाह ने, ठीक है, साडे कल्चर के अकॉर्डिंग एक दस्तार की जिहड़ी हैगी आ वो सिरजना की है, ये भी साडा एक सभ्याचार। कुर्ता चादरा, ठीक है, ये साडा पंजाबी जुत्ती, ये साडी पंजाबी सभ्याचार है। कुल मिला के दे विच खाण पीण, रहन सहन, बोली, भाषा, ठीक है, ये सारियां आदतां की एक सभ्याचार। इस करके इहदे विच समाज दे विच रहिंदे आ तां समाज दे विच वक्खो वक्खरे सभ्याचारां दे लोक हुंदे आ तां ओह सारिआं नूं आपां एक बना के रखना, ठीक है, जां उहनां दे विच एकता पैदा करनी, ये भी समाजिक अध्ययन दे विषय दा खेतर आउंदा है। उस तो बाद एंड ते की है एक जिहनूं आपां सिटा की चीज़ है कंक्लूजन दे विच की आउंदा बेटा जी कि जदों असीं इहदा खेतर दर्शाउणा, भाव की लंबाई चौड़ाई